এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। প্রায় 2 বছর পর আমি আজকে তোমাদের সাথে শেয়ার করতে চলেছি আমার কিছু পার্সোনাল লাইফ স্টোরিজ, যেটা তোমাদেরকে মোটিভেট করবে, ইন্সপায়ার করবে অ্যান্ড প্রচুর নলেজ প্রোভাইড করবে। সো তোমরা লাস্ট আমার ভিডিও দেখেছিলে দুবাইতে ডাইরেক্টর সেমিনারে, অ্যান্ড আগামী দিনও তোমরা সেরকম ভিডিও দেখতে চলেছো। বাট তার মাঝে এই যে 2 বছরের একটা গ্যাপ, সেখানে আমি কি করলাম সেটা তোমাদের সাথে আমি ডিসকাস করব। সো চলে আসি প্রি ম্যাচিউরিটি কী জিনিস সেটা বলার জন্য। সো সবার আগে বলি যে আমি এখন 2 সন্তানের মা। আমার 2জন বেবি আছে, ফার্স্ট বর্ন 2023 ফেব্রুয়ারি অ্যান্ড সেকেন্ড বর্ন 2024 অক্টোবর। সো আমি এই রিস্ক নিয়েছি পর 2 বছরে 2টো সি-সেকশন সিজার ডেলিভারি। তোমাদের সাথে শেয়ার করব আজকে যে আমার 2 বেবি প্রিম্যাচুয়ার, আর এই প্রিম্যাচুয়ার বেবিজ আমার লাইফে বিগেস্ট ব্লেসিং, কারণ তাদের থেকে আমি অনেক কিছু শিখেছি। অ্যান্ড আমার এখন ছোট বেবি কথা বলছে, তোমরা শুনতে পাচ্ছ। আধিরাজ। সো আধিরাজকে আনতেই হলো, সে একদম একা থাকছে না। অ্যান্ড মাহিরাজ বাইরে খেলছে। আমার 2 বেবি, আধিরাজ এখন জাস্ট 5 মান্থস ওল্ড অ্যান্ড নো স্ক্রিন টাইম, বাট আধিরাজ কিন্তু দেখছে তোমাদেরকে। তো একটু আধিরাজকে নিয়েও স্টোরিটা শেয়ার করি, আগে মাহিরাজকে নিয়ে শেয়ার করি। সো জাস্ট একটা কথা বলে দিন, বেশি ডিটেলসে যেতে চাই না। ফার্স্ট প্রেগনেন্সি আমার 2020-তে আসে, যেটা সাকসেসফুল হয় না। অ্যান্ড সেটার সাথে আমি নর্মাল ডেলিভারিরও পেন সহ্য করেছি। সো ফরগেট অ্যাবাউট দ্যাট। অ্যান্ড দেন মাহিরাজ আমার প্ল্যান্ট বেবি। ভীষণভাবে চাইতাম মা হতে, নিজে জন্ম দিতে। সো 2020-র পরে অনেকটা পাগল হয়ে গেছিলাম সন্তানকে হারিয়ে। অ্যান্ড তারপরে 2টো বছর আমি পুরোপুরি আমার কেরিয়ারে ফোকাস করি। অ্যান্ড তোমরা দেখেছো, তার জন্য আমি একসাথে ইন্ডিয়াতে ফার্স্ট অ্যান্ড এভার 3টে অনেক বড় টাইটেল, দ্যাট ইজ সিনিয়র গোল্ড ডাইরেক্টর, সাফায়ার ডাইরেক্টর অ্যান্ড ডায়মন্ড ডাইরেক্টর উইথ আ ক্যাশ অ্যাওয়ার্ড অফ 6.5 lakh rupees অ্যাচিভ করি। দেন আফটার 3 months এগেইন সিনিয়র ডায়মন্ড ডাইরেক্টর উইথ আ ক্যাশ অ্যাওয়ার্ড অফ 4 lakh rupees অ্যাচিভ করি। সো এটা ছিল আমার ম্যাডনেস। আমি পাগলের মতো কাজ করেছি জাস্ট টু ফরগেট অ্যাবাউট মাই পাস্ট। অ্যান্ড তার জন্য আমি এই অ্যাচিভমেন্টের পর দেন 2021 অ্যান্ড দেন 2022 মে মাসে আমার মনে হলো যে না, চলো, আমি অনেক কাজ করেছি, 2 বছর আমি জাস্ট খুব কম ঘুমিয়েছি, এবার আমি একটু ফোকাস করি আমার মাদারহুড জার্নির জন্য। অ্যান্ড প্ল্যান করি। অ্যান্ড জুনে আমি মাহিরাজকে কনসিভ করি। মাহিরাজ হঠাৎভাবে 8 মান্থসে বর্ন হয়। অ্যান্ড আমি এবার একটু হিন্দিতে বলি, বিকজ আমি চাই যারা ইন্ডিয়াতে হিন্দিতে বোঝে তারা যাতে বুঝতে পারে। So my pregnancy journey was very beautiful with Adhiraj, but with Mahiraj it's very difficult because कुछ नहीं खा पाई मैं फुल प्रेगनेंसी माहिराज के टाइम। बस मूली का जो पत्ते होते हैं उसका साग मम्मी बनाते थे और उसके साथ राइस आफ्टरनून में, और नाइट में ओनली राइस और लाल मिर्च, बस यही खाया मैं माहिराज के टाइम में। 4 February 2023 আমার 33 weeks রানিং। আমি যাই डॉक्टर के पास एंड डॉक्टर सब टेस्ट किया, बोला एवरीथिंग इज़ ओके, सब ठीक है, चलो लाइट आ गया। आदि तो एवरीथिंग इज़ ओके एंड मैं घर आ गई। एंड 7 February और मम्मा आधिराज देखेगा सब। अच्छा मम्मा ऐशो 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 आदि एंड पापा, आदि सुनेगा नहीं, और बाहर अभी माही खेल रहा है ना, तो छोड़ भी नहीं सकता आदि को। सो 7 February दिन मैं बैठी थी बाहर सब फ्रेंड्स के साथ मेरे सोसाइटी के। मुझे काइंड ऑफ मेरा थोड़ा लगा कि सिर घूम गया, तो मैं घर आई, बैठी, मम्मी ने मुझे कोकोनट वाटर दिया। देने के बाद मैं बोला मम्मी शायद मुझे लग रहा है कि मेरा टॉयलेट हो गया है। मम्मी बोला चेक करो, देखा नहीं हुआ। तो मैंने बोला मम्मी वॉशरूम गई तो जस्ट थोड़ा बूंद बूंद ब्लड निकला। मम्मी बोला कोई बात नहीं, तूने तो अभी 4 February चेक किया, बेबी 2.2 kg का है, तो सब ठीक है। मैंने बोला नो मम्मी। तो मैंने डॉक्टर को फ़ोन किया, डॉक्टर बोला अरे अभी तो तुम चेकअप करके गए, कोई बात नहीं। मैंने बोला नहीं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन माहिराज के टाइम टिल 16 to 18 weeks मेरा ब्लीडिंग बहुत होता था, बहुत, क्योंकि मेरा एक पॉलिप था, तो पॉलिप के लिए मेरा बहुत ब्लीडिंग हुआ। तो
तो मुझे डरने का बात नहीं था क्योंकि मैं ब्लीडिंग से अकस्टम्ड हो गई थी, लेकिन फिर भी मुझे कुछ डाउट हुआ। तो जैसे मैं गई, डॉक्टर इमरजेंसी में देखा, तो डॉक्टर बोला कल सी सेक्शन करना है क्योंकि मेरा प्लेसेंटा रप्चर हो गया है, जिसको बोलते हैं प्लेसेंटा एब्रप्शन। तो 40% मेरा प्लेसेंटा मेरे यूटेरस के अंदर खुल गया है, जिसके कारण माही को पूरी ऑक्सीजन फ्लो नहीं हो रहा। तो डॉक्टर देखा कि अगर मेरा नॉर्मल डिलीवरी हुआ तो ठीक है। तो अगले दिन सुबह 9 बजे मुझे ओटी में लेके गए एंड माही हुआ 11 बजे के आसपास सी सेक्शन। एंड मेरा सबसे बेस्ट मोमेंट जब मैं तो देख रही थी ऐसे आँख खोल के, एकदम माही को निकला और माही क्वैं करके रोया। माही का बहुत हेयर हुआ था, आधी का थोड़ा कम है। एंड वो जो पहली बार मैं माही को देखा, मुझे ये फीलिंग हुई मेरे अंदर से हुआ एंड माई बेबी, माई चाइल्ड। और मैं ऐसे देख रही हूँ माही को, लाइक मुझे गॉड ने सबसे बेस्ट गिफ्ट दिया। एंड तुरंत माही को मैं ऐसे देख रही थी। एंड फिर मैं Cloud9 चंडीगढ़ में मेरा हुआ, मैं ऐसे राइट साइड होकर देख रही हूँ माहीराज को। एंड देन देखा कि माहीराज एकदम नहीं हिल रहा है। तो माहीराज को बहुत पंप कर रहा है, बहुत कुछ कर रहा है। तो मैं डर के मेरा आँख बंद कर ली कि माहीराज क्यों नहीं रो रहा है। एंड देन अंदर मेरा जो वो प्लेसेंटा एब्रप्शन हुआ था, तो बहुत टाइम लगा था क्लीन करने में। और तब तक मैं सुनने की कोशिश कर रही कि माहीराज क्यों नहीं रो रहा है। तो बहुत टाइम बाद माहीराज फिर हिला, मैंने देखा। तो मैंने देखा कि हाँ मेरा बेबी बॉय हुआ है। तो माहीराज को जब मेरे पास लाया तो माहीराज के नाक में ऑलरेडी सब पाइप्स लग गया था। तो मैंने किस करने का कोशिश किया तो देखा मेरे नाक पे भी ऑक्सीजन मास्क है, तो मैं कर नहीं पाई। देन माहीराज को लेके गए। देन मैं बेड पे आई, खुशी से मैं सबको फ़ोन करके बोल रही हूँ तुरंत। पापा बोल रहे हैं अभी तो ऑपरेशन हुआ है तो फ़ोन कर रहे हैं। आई वॉज सो मच एक्साइटेड, मुझे सबको बोलना है। एंड देन मैं वेट कर रही हूँ कब मैं माहीराज को गोदी में लूँगी। देन इवनिंग को जब मैं बोला कि माहीराज कहाँ है, मेरा बेबी कहाँ है, तो मुझे बोला कि आपका बेबी वेंटिलेशन में है। हाँ, मैं भी कुछ नहीं बोल सकते बिफोर 72 आवर्स, और आपको दे भी नहीं सकते और आप अभी जा भी नहीं सकते क्योंकि आपका सी सेक्शन हुआ है। दैट टाइम मैं फ़ोन बंद किया, मैं सो गई क्योंकि मैं एकदम, मुझे पता ही नहीं है कि प्रीमेच्योर बेबी क्या होता है। माहीराज हुआ 33.6 वीक में, वेंटिलेशन में है, क्या प्रॉब्लम हुई मुझे कुछ नहीं पता चल रहा। ऊपर से ये चंडीगढ़ है, यहाँ हिंदी स्पीकिंग है। मैं बोल रही मेरे से इंग्लिश में कम्युनिकेट करो कि मुझे पता लगे एक्चुअली क्या है, क्योंकि हिंदी से मैं उतना अकस्टम्ड नहीं हूँ। फिर अगले दिन मैं बोला मुझे बेबी को देखना है। मैं व्हील चेयर में गई, NICU के बाहर व्हील चेयर रखा, मुझे पता भी नहीं, मैं वॉकिंग करके अंदर भी चली गई। बस माहीराज को देखा, जाके बोला हेलो बेबी। माहीराज थोड़ा सा आवाज़ किया, तो मुझे डॉक्टर बोला कि आज इसने आवाज़ किया, आपको ये पहचाना। कुछ देर बाद मुझे मेरा पूरा शरीर कांपने लग गया। तो तुरंत मेरी सिस्टर व्हील चेयर में बिठा कर बोला अरे आपने वॉकिंग की इतना। मैंने बोला मैं कैसे वॉकिंग की, मुझे पता ही नहीं मैं वॉकिंग कर ली। बोला हाँ क्योंकि आप बेबी को देखने के लिए वो से हो गए। ठीक है, आफ्टर 3 days बोला माहीराज इज स्टेबल बट हम घर नहीं भेज सकते, आपको छुट्टी दे देते हैं। मैं घर आई, वेटिंग कब माहीराज को मैं देखूंगी। देन 1 हफ्ता हो गया, डेली पंप करना, ब्रेस्ट मिल्क निकालना, देविंदर को देती थी, देविंदर जाता था हॉस्पिटल लेके। देन आफ्टर 1 वीक, हाँ 8-9 दिन बाद मैं फिर से हॉस्पिटल में एडमिट हुई। एक दिन माहीराज को मेरे साथ रखा, स्पून फीडिंग किया क्योंकि बोला था कि उसको सक नहीं कराना है, लैच नहीं कराना है क्योंकि बच्चा बहुत कमज़ोर है। 2.3 kg का हुआ था, लेकिन फिर बहुत घट गया था वजन, वेट। माहीराज को फिर घर ले आई। माहीराज का लंग्स मैच्योर नहीं था, तो माहीराज को बहुत प्रॉब्लम होता था। थैंक्स टू डॉक्टर अजय गुप्ता, जिनके पास मैं सेक्टर 44 चंडीगढ़, जिनके पास मैं 2-2 दिन 3-3 दिन छोड़ के जाते थे माहीराज को चेकअप कराने। फिर माहीराज का ROP टेस्ट था, रेटिना का क्लियर हो गया था, कुछ भी नहीं था उसमें। तो माहीराज को लेके हम लोग बहुत गए, बहुत आना जाना डेली करते रहे। यही है माहीराज, जिसका स्टोरी मैं आप लोगों को सुना रही हूँ। वेरी एक्टिव एंड खूब दुष्टू है ना माही। ऐसे ही मेरा माहीराज के साथ मेरा चलता रहा कि फर्स्ट माँ बनी थी मैं, कैसे क्या करना है, कैसे टेक केयर करना। ऊपर से माहीराज हो गया था फुल फार्मूला फेड बेबी। माहीराज कभी नहीं इलाज किया और मैं भी करा नहीं पाई क्योंकि माहीराज की कैफीरेट दवाई चला था, तो डॉक्टर बोला था ये बंद होने के बाद ही इलाज कराना है, बट वो चला टिल 2 months। तो माहीराज 2 महीने का हो चुका था, इलाज करना भूल गया था, तो कभी किया नहीं।
देन माहिराज को बार बार इंडाइजेशन होता था, डायरिया होता था। तो माहिराज अभी 2 साल 1 महीने का हो गया है। 1 साल माहिराज को डेली फीवर आना, बहुत बार उसका स्टूल टेस्ट, यूरिन टेस्ट होता था। बहुत 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 मुश्किल से माहिराज को मैं धीरे धीरे ग्रो किया। So Mahiraj suffered from respiratory distress syndrome RDS and then 8 महीने बाद मैं कोलकाता गई ओरिफ्लेम का काम फिर से शुरू करने के लिए। बट दैट वाज माय बिगेस्ट मिस्टेक एंड बैड डिसीजन, क्योंकि कोलकाता का वेदर माहिराज को बिल्कुल सूट नहीं हुआ। माहिराज हर हफ्ते बीमार होता था, हर हफ्ते मुझे डॉक्टर के पास माहिराज को लेके जाना पड़ता था। एंड एट द मेन टाइम आफ्टर माहिराज 1 years ओल्ड मुझे पता भी नहीं चला कि फिर से मैं माँ बनने जा रही थी। एंड कुछ महीने बाद जब मुझे पता चला, मैं श्योर हो गई, तो मैं तुरंत चंडीगढ़ आ गई। एंड वही मेरा बेस्ट डिसीजन था, क्योंकि चंडीगढ़ आते ही माहिराज एकदम गुड हेल्थ उसका हो गया। एंड आधिराज भी हुआ प्री मैच्योर, 34.3 या 4 डेज़ का था आधिराज। मेरा ड्यू डेट था 26 नवंबर, बट आधिराज हो गया 16 अक्टूबर। यस, आधिराज के टाइम में भी मैं 14 अक्टूबर मेरा बर्थडे के दिन मैं डॉक्टर दिखाई। डॉक्टर सेड एवरीथिंग इज़ फाइन, अल्ट्रासाउंड भी हुआ। बट 16 अक्टूबर मैंने लंच किया 2:30 बजे एंड मेरा चेस्ट के 2 साइड मेरा पेन होने लग गया। मैं बोले ये तो अजीब सा पेन है। तो देविंदर बोले कि चलो एक बार डॉक्टर के पास। एंड जैसे ही डॉक्टर के पास गए, बोला अंदर क्या हो रहा है हमें नहीं पता। 5 बजे हो गया आधिराज एंड मैं बहुत डरी हुई थी उस टाइम। मैं आधिराज को देखा भी नहीं, क्योंकि इतना मुझे यहाँ पे पुश करके आधिराज को निकालने पड़ा सी सेक्शन में भी, कि मैं डर के मारे मैं आँख बंद कर लिया। मुझे पता चला आधिराज हुआ डॉक्टर पैट के, बट उसने रोया नहीं, तो मैंने आँख डर के मारे नहीं खोला। कुछ देर बाद मेरा कान में बस ये सुनाई दिया कि नो RDS। मैं सोचा कि चलो RDS तो नहीं हुआ आधिराज को, बट स्टिल आधिराज को प्रॉब्लम क्या हुआ, जब मैच्योर बेबी होते हैं, नॉर्मल डिलीवरी होते हैं, तो स्क्वीज़ होकर निकलते हैं, तो लंग्स में जो पानी होता था वो निकल जाता है। बट आधिराज प्री मैच्योर हुआ, तो लंग्स में जो पानी था वो निकला नहीं, उसको फिर बाद में निकलना पड़ा। तो आधिराज वीक था उस दिन, वो भी वेंटिलेशन में था। बट आधिराज फिर भी 8 दिन बाद घर आ गया। एंड आधिराज इज़ माय ब्रेस्ट फीडिंग बेबी। इसको मैंने फार्मूला दिया ही नहीं है, देविंदर है, सब है, बट न्यू बॉर्न बेबी को माँ ही केयर कर सकते हैं। बस इतना मैं केयर करने का कोशिश किया कि बैक टू बैक 2 सी सेक्शन मेरा न्यूमोनिया का अटैक आ गया और मैं 9 दिन हॉस्पिटलाइज्ड हुआ। बट यही बहुत सैडेस्ट पार्ट ऑफ माई लाइफ कि इन दोनों को छोड़ के मैं 9 दिन रहा। सो आधिराज आने के बाद थोड़ा इजी हो गया मेरे लिए दोनों को एक साथ संभालना, एक रूटीन हो गया लाइफ में। माहिराज को लेके मेरा डर बहुत था, क्योंकि माहिराज प्रीमेच्योर है एंड इतना प्रॉब्लम, माहिराज खाना खाने में प्रॉब्लम। और मैं एक बात बोलूँगी, कुछ लोग आप बहुत खुश हो जाओगे। Mahiraj is now 2 years and 1 month old, and Mahiraj still now never drank any cold drink or never ate any chips from my end, any chocolate, any Cadbury, nothing. माहिराज को कम्प्लीटली घर का खाना देते हैं, बाहर का खाना कभी नहीं दिया माहिराज को। एंड मैं खुश हूँ, क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ जितना कम दे पाए, क्योंकि कभी ना कभी बच्चे बाहर आ जाएंगे, खाएंगे पिएंगे। बट जब तक मैं कंट्रोल कर पाती हूँ तब तक मैं हैप्पी हूँ। सेम मैं आधिराज के साथ भी करूँगी। बट आधिराज ने मुझे बहुत इनकरेज किया। आधिराज मुझे फ़ाइट करना सिखाया, क्योंकि आधिराज से मैं देखा कि नहीं, हर प्रीमेच्योर बच्चे इतने वीक नहीं होते हैं। माहिराज को देख के मुझे बहुत डर लगता था, लेकिन आधिराज ने वो डर मेरा मिटा दिया। आधिराज भी बस माहिराज 33.6 एंड आधिराज 34.3 और 4 डेज़, ऐसे बस 3-4 दिन का फ़र्क था। मैं जो मेरा रूटीन बना लिया, सुबह उठना, दोनों को कम्प्लीटली नहलाना, दोनों को खिलाना, ब्रेकफास्ट कराना, करने के बाद मुझे थोड़ा टाइम मिलता है, खुद रेडी हो जाती हूँ। देन माहिराज को लंच करा के दोनों को सुला देते हैं एंड देन मैं अपना ओरिफ्लेम का काम कर लेती हूँ। एंड इवनिंग को फिर से माहिराज को स्नैक्स देना एंड रात को डिनर करने के बाद मुझे 2 घंटा मी टाइम मिल जाता है। हाँ, स्लीप मेरा रात को कम होता है, मॉर्निंग के टाइम बेहद ज़्यादा होता है, तो मेरा मम्मी कुछ देर तक माहिराज को संभाल लेते हैं। ऐसे करके मैं अपने रूटीन बना लिया। एंड सबसे ज़्यादा मैं
थैंकफुल हूँ ओरिफ्लेम कंपनी जो मुझे हमेशा इनकरेज किए, और मेरा टीम स्टार क्लब टफ टाइम में मुझे छोड़ कर नहीं गए, तो आने वाला अभी बेस्ट टाइम में भी मुझे छोड़ के नहीं जाएंगे। एंड उनके लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ, जिनके लिए आज मैं फिर से ओरिफ्लेम में फुल टाइम देने चाह रही हूँ एंड कोशिश भी कर रही हूँ। एंड अभी फिर से डायरेक्टर सेमिनार आ चुका है, एंड वो मेरे साथ मेरा टीम भी जा रहे हैं। एंड मैं अभी फिर से जूम मैं बीच में भी लिया, बट नहीं, अभी जो मेरा प्रोडक्ट का जो मैं खुद नॉलेज लेती हूँ, ट्रेनिंग देती हूँ, वो सब मैं धीरे धीरे स्टार्ट कर दिया है। एंड कहीं भी जॉब में मैटरनिटी लीव होता है 6 महीने के लिए, बट मेरा 2 साल में 2 बेबी हुआ, 2 साल में मेरा इनकम कम नहीं किए ओरिफ्लेम कंपनी। एंड ये इनकम डिपेंड करते हैं मेरे टीम के ऊपर। मैं बार बार बोलती हूँ, मेरे टीम में जो लीडर्स है वो लीडर्स बेस्ट लीडर है, एंड भगवान ने मुझे गिफ्ट किए हैं ये लीडर्स। एंड आई एम ऑलवेज थैंकफुल टू माई टीम स्टार क्लब। हर एक मेंबर 0% से मैनेजर से डायरेक्टर से गोल्ड डायरेक्टर से सबको मैं थैंक्स जनाना चाहती हूँ, क्योंकि आज वो लोगों के लिए मैं यहाँ पे हूँ। वो लोग ही मुझे क्रिएट किए, और आज वो लोग ही मेरे साथ आगे बढ़ रहे हैं। सो आई एम वेरी हैप्पी। एंड मैं आप सबको ब्लेसिंग चाहती हूँ मेरे 2 बेबीज़ के लिए, क्योंकि मेरे 2 बेबीज़ ही मेरा जान है। एंड एक लड़की के लाइफ में ना कुछ भी स्टेबल नहीं होता है। बचपन से बड़े हो जाओ, फिर पापा का घर छोड़ के ससुराल जाओ, एंड कोई अगर बहुत डिटरमाइंड हो मेरे जैसा तो अपना घर भी बना लो, तो जैसे कि मैं बनाई हूँ। एंड उसके साथ फिर जब बच्चे होते हैं तो लगता है कि हाँ कोई तो अपना हुआ है, एंड उनको बड़े करो। एंड जैसे अभी माहिराज साउंड कर रहा है, ये तो मेरे घर में चलता ही है। मैं बहुत खेलती हूँ दोनों बच्चे के साथ भी। एंड फाइनली बच्चे को बड़े करना है, बट खुद का काम नहीं छोड़ना है। हाँ, कभी कभी मुझे भी लगा था कि शायद मेरे से नहीं होगा, लेकिन वही है कि नहीं, जुड़े रहना है। मेरा मम्मी मुझे इसलिए मोटिवेट करता है, देविंदर करता है कि नहीं आप लगे रहो, होगा फिर से स्टार्ट कर पाओगे। कुछ टाइम के लिए करियर में ऐसे होते ही है, क्योंकि आप माँ बने हो एंड 2 प्रीमेच्योर बेबी संभाल रहे हो। एंड मैं बच्चे के लिए कोई मैंने हेल्पिंग हैंड नहीं रखा, बस मैं, मेरे हस्बैंड और मेरे मम्मी, बस मेरे ननद भी मुझे बहुत हेल्प किया। एंड थैंकफुल, मैं बहुत बेस्ट फादर इन लॉ भी मुझे मिला है, जो मुझे हमेशा सपोर्ट करते हैं। ठीक है, बट आप सब मुझे ब्लेसिंग दीजिए, ब्लेस कीजिए मुझे, कि मैं आप सबके साथ मैं बहुत आगे बढ़ूँ, मेरा 2 बच्चे को मैं अपना जो ड्रीम है मैं फुलफिल करूँ। एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपकमिंग वीडियोज़ ऑन डायरेक्टर सेमिनार।